वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अंकित ने, और वीडियो का टाइटल है टॉप 10 बेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया ब्यूटीफुल रेलवे रूट्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। We all have memories of reaching the railway station, buying a dozen magazines, comics and packets of munchies and fighting for the window seat. There are always a few things in our lives that we enjoy all through our childhood to way later. For most Indians and people who have lived and grown up in India, it is train journeys. The Indian Railways reaches out to 30 million people across all nooks and corners of the culturally and topographically diverse subcontinent. Let's have a look at the 12 best train routes in India, most beautiful railway rides. इधर टॉय ट्रेन कितना प्यारा लग रहा है। Before we start with the countdown, please don't forget to subscribe to Trip Extreme and press the bell icon to watch our videos first. Number 12. Mumbai-Pune. This is an especially fun train ride as it crosses many interesting places. Starting from Mumbai, where you are all ready for the 3-hour journey to Pune, you pass through Karjat, known for the best vada paos. After which you come across Lonavala, Khandala and other beautiful hill stations you shouldn't miss. Lonavala is known for its chicky and jelly fruits and other random train goodies that you usually don't get of great quality elsewhere. While reaching these places, travelers are treated to sights of beautiful waterfalls and also the Monkey Hill. Beware, monkeys these days even like cell phones. Number 11. Chilka route. Bhubaneswar to Brahmapur. A morning ride from Bhubaneswar to Brahmapur is more than sufficient for Orissa to prove its grandeur. Nestled between the eastern Ghats and the Chilka Lake, this train route makes sure you see it all. Interesting to note that Chilka is the second largest lagoon for migratory birds, and this place is a treat for bird watchers all around. Number 10. Desert Queen. A journey that chugs off in the desert of Thar from Jodhpur to Jaisalmer fights against the entire stereotype that deserts are just barren land. The traveler is welcomed to the sight of the never-ending desert, something that liberates the mind yet frightens it. Dotted by the colorful traditional mud huts and so many camel grazing around the place. Sunrises of the desert are something very few get the pleasure to witness, because we always tend to prefer the colder regions, but this is one train route that will challenge your taste and take you on a ride, making you feel like you're on top of the world, a lone ranger, happy and content. Number 9. The Indian Maharaja Deccan Odyssey. One of India's few luxury trains, this 10-night route offers its travelers everything from a library, an Ayurvedic massage center, a beauty parlor, steam baths, a gymnasium, a business center, conference rooms, air-conditioned coaches and luxury suites on its journey from Pune to Delhi and back. It stops at the main tourist destination right from Ajanta-Ellora caves in Maharashtra to the Taj Mahal in Agra. The Deccan Odyssey's luxury is a sight to behold. Everything about the train and its service reflects royalty and the word Maharaja, and that is what makes this journey one worth having. Number 8. Mandapam Pamban Rameshwaram. Known as one of the most dangerous routes in India because it runs on a thin bridge, this route is exciting and a must-try for those adventure birds. This bridge is known as the second longest bridge in India. The route connects Mandapam in Tamil Nadu to the island of Rameswaram and is a route you will fall in love with instantly. Number 7. Duar's Voyage. Siliguri, Newmal, Hasimara, Alipurduar. Undeniably one of the best train routes in India as it passes through such a huge number of forests and wildlife sanctuaries, namely Mahananda Wildlife Sanctuary, Forest, Jaldapara Wildlife Sanctuary and Buxa Tiger Reserve, along with numerous stream crossings. The train route, recently converted to broad gauge and thus has minimum traffic, that is worth all every moment for the fascinating amounts of flora and fauna one can find there. Number 6. Matheran Hill Railway. Remaining as the only heritage railway in Maharashtra, Matheran still is a favorite among both people from Mumbai and those from outside.
for the peace and tranquil atmosphere it offers. This narrow gauge rail line was built by Akbar Pir Roy way back between the years 1901 to 1907. It runs through large swaths of forest territory and covers a total distance of 20 kilometers. Whether you are alone or with family and friends, this journey will surely take your mind off things for the little while it carries you. Number 5. Kanyakumari Trivandrum. A short train journey but one packed with delicious sensory ticklers. This journey takes you through coconut trees and gliding past typical Tamil and Keralite architecture. Gopurams and ornately decorated temples cross over to welcome typical Keralite churches and a totally different style of architecture. This train ride is indeed through South India's most picturesque locations. Number 4. Mumbai to Goa. People are always talking about these two places, one for its glamorous and busy life and the other for the vacation mood it sets you in. The train that connects you to both these places is one that gives an equally stunning experience, running between the Sahyadri Hills on one side and the Arabian Sea on the other. Cruising through 92 tunnels and on 2000 bridges, this route gives you postcard-worthy moments every 5 seconds with endless stretches of water, paddy hues and villages under shades of coconut trees. Number 3. Vasco da Gama to Londa. The journey from Vasco da Gama in Goa to Londa in Karnataka offers you the satisfaction you can only derive by watching pristine Goan villages zoom by your window. It moves up to the western ghats with the scene changes to lush greenery and mountains. As the vegetation decreases, waterfalls steal the show. Sprinkles of water on your face because of force is gushing with. The best time to go on this journey is after the monsoon, when you can enjoy the vibrant red color of the clay soil. Number 2. Darjeeling Himalayan Railway, Jalpaiguri to Darjeeling. Another impressive toy train journey is the one that runs from Jalpaiguri to Darjeeling. Breathtaking, quite literally, when the route takes you on a series of landscapes, altitudes and climate changes. Jalpaiguri being a plain and Darjeeling the hill station that serves the best tea in all of India. Prepare yourself for a trip hooded by the Himalayas through tea gardens and forests, and if you're lucky and the skies are clear, you can spot the magnificent Kanchenjunga. The journey takes you as close as possible to the tea gardens, where you can experience a mesmerizing smell of tea. An interesting thing to note about this train that it runs on meter gauge and is also a proud UNESCO World Heritage Site since 1999. Number 1. Himalayan Queen, Kalka to Shimla. For those of you who enjoy movies and feeling filmy when you travel, this rail journey by the toy train is a must. The trains that run on this route resemble toy trains that awaken the inner child in you. 96 km long, this route was started way back in 1903 and it passes through 102 tunnels and 82 bridges, and has been awarded a world record by the Guinness Book of World Records for the steepest rise in altitude in the span of 96 kilometers. For 5 hours that you will travel on this pretty little train, you will pass through scenic beauty that will amaze you. Everything from pine trees, oak valleys, deodar, rhododendron forest, and a route that moves upwards till it reaches Shimla will keep you gaping at its beauty. All this and more awaits you on this ride that is now UNESCO World Heritage Site since 2008. Toy train in this route offered by Indian Railways is a treat to the eyes. It might be a relatively slower way to reach Shimla from Kalka, but the rail route is possibly more picturesque than the destinations themselves. So these were the 12 best train routes in India, the most beautiful railway rides. So did you like any one from these? If so, please let us know in the comment section below. रेल के सफर की बात करें ना, तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को जो है रेलगाड़ी में एक लग्जरी सफर करना पसंद होता है, क्योंकि इन्हें भी ये भी उन्हीं लोगों में इनका शुमार होता है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे इकोनॉमी क्लास जो है ना, उस पे सफर करने का बहुत मजा आता है भाई। नहीं वैसे हाँ, इस मामले में वाकई में सही कह रहा है, मुझे आराम से सफर करने का मजा आता है कि आप इंजॉय करो, क्योंकि मुझे अपने साथ इंजॉय करना है। इसको तो मुझे पता है ना कि इसकी बचपन से आदत है कि क्या करता है, जब छोटा होता था ना, तो तभी जब हम गांव जाया करते थे, तो अगर हम लोगों को सीट नहीं मिल रही, मौजम साहब ने ना, छोटे से मौजम साहब ने ऐसे घुस के
किसी के साथ पहले बातें करनी है, बातें करते 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 इसने ना जो विंडो वाली बात की थी ना, विंडो सीट की बात, वो भी सच है। इसने ना फिर ऐसे ऐसे करके ना ऐसे करके उस बंदे के साथ इसने विंडो वाली सीट पर बैठ जाना। ये यार देखें वो बचपन की बात थी, लेकिन अगर अब बात करें ना, अब तो वैसी खिड़की वाली साइड पे होने लगे, लोग देखने लग पड़ते भाई किधर हम पहले के खड़े हुए हैं। तो अब जो है सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। लेकिन विंडो सीट की मैं अभी भी बात करूँ ना, तो ये हमने कभी इकट्ठे जाना ना, विंडो वाली साइड में मैंने बैठना है, ये साथ ही मैंने बैठना है। तुम मुझे बैठने देते हो? ये झूठ बोल। तोबा यार तोबा कर ले, तुम भी तोबा कर लो। मैं यार यकीन है नहीं, ये बैठती हैं नहीं, आप बैठती हैं। पहले बताओ, जब हम प्लेन में गए थे तो कौन बैठा था विंडो वाली सीट पे, बताओ। है कहाँ पे थी वो? आगे ऊपर आ गया था विंडो वाली सीट पे। हमें पहले कह दिया था भाई विंडो वाली साइड पे। मैंने कहा था मैं विंडो वाली साइड पे बैठूंगा, लेकिन वो विंडो के आगे पर आ गया, विंडो थी नहीं। हमारा क्या कसूर? तुम्हारी किस्मत। मेरा क्या कसूर? मैं सच बता रही हूँ, इसकी ज्यादातर कोशिश यही होती है। अच्छा हाँ, कोशिश मेरी होती है, ये चीज मैं मानता हूँ, लेकिन जब ये मुझे कहती है ना नहीं मैंने बैठना है, मैं फिर कहते ठीक है बैठ जाए यार। थोड़ी देर बाद ये बोल भी देता है कि अच्छा चलो आप इधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाता हूँ। पर ये है कि ट्रेन का सफर जो है ना यार, इकोनॉमी क्लास में मजा है, उसकी रीजन ये क्या है कि जब आप एसी में बैठे होते हैं ना, तो उसके शीशे आपको पता है इस तरह होते हैं कि अगर आपने बाहर झांकना आपको दरवाजे पे जाना पड़ता है। इकोनॉमी क्लास का क्या है, ऐसे सिर बाहर निकालो आपको सब कुछ नजर आ जाता है। मैं एक बात बताऊं कि हम लोग जब भी एसी पॉलर में जाते हैं ना, मोदन साहब कभी बैठे नहीं है उसमें। मोदन साहब आपको थोड़ी देर, इसको बैठना मुझे लगता है कि इसके क्या से बोलते हैं, सीट में कोई स्प्रिंग लगे होते हैं शायद के, जो चुभते रहते हैं इसको। अगर यानी कि इसे थोड़ी देर बाद फिर से जाना है चक्कर लगाना, फिर से जाना है चक्कर लगाना। अगर दिन का सफर हो ना फिर मैं नहीं बैठता, अगर रात का सफर फिर मैं बैठ जाता हूँ। खैर अभी हम बात करते हैं आज की इस वीडियो की, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ टॉपिक चले गए। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूंगा राजस्थान वाले रूट की, क्योंकि वो जो कल्याण वाला रूट जो था वो तो हमने देखा हुआ था ना, घाट्स वाला रूट। खैर कल्याण वाला तो नासिक को चला जाता है, तो वो पुणे क्या होते हैं यार, घाट घाट वाला रूट तो हमने देखा हुआ है ना। लेकिन मैं यहाँ पे राजस्थान वाले रूट की बात करना चाहूंगा। मैं इन्हें बोलने नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे एक लफ्ज से बार बार ट्रोल करेंगी। मैं ट्रोल नहीं करेंगी, लेकिन ये सच में यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो था ना एस और एस ऐसे ही लगा देते हैं उर्दू की किसी भी वर्ड। हम लोग देखें हम पंजाबी हैं, हमने सब कुछ मिक्स किया हुआ है। जहाँ नहीं, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। रोड को कहते हैं रोड्स, ठीक है ना। हम कहेंगे रोड क्या, रोडे जमा बुके यहाँ पर। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भी देखे हैं जो कि इंग्लिश कंट्रीज में भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो आते हैं यहाँ पर तो ऐसे ही बोलते हैं रोडे बुके। हम लोग कहते हैं अच्छा वाह जी वाह, रोडे हमें आपसे सीखना, आप हमसे सीख रहे हैं। सही बात है। वेल गाइस, वाकई में अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी बहुत ज्यादा मस्ती हो गई है, और सबसे पहले मौसम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं राजस्थान वाले रूट की बात करूंगा। सहरा जो है वाकई जब उसमें ट्रेन जाती है तो आपको दूर तक जब कुछ भी नहीं दिखाई देता सिवाय मिट्टी के और बंजर जमीन के, तो वो एक अलग ही अनुभव होता है। क्योंकि मोस्टली अगर हम बात करें ना, हम जो थोड़े से हरियाली वाले इलाकों में रहते हैं उन्हें पहाड़ों पे ट्रेन चलती हुई बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद सहरा की बात करें तो वहां पे भी चलती बहुत अच्छी लगेगी। वैसे आज तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा सहरा का, कभी एक्सपीरियंस नहीं, बट आई कैन इमेजिन कि जब आप ट्रैवल करते हो और आपकी ट्रेन की जर्नी एक तो बहुत कंफर्टेबल होती है, और इस तरह के रूट्स आते हैं तो नो डाउट उनको देखने का एक मजा ही कुछ और होता है। और स्पेशली जब वो ट्रेन मौसम गुजर रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कर रही थी कि अगर यहाँ से जैसे ड्रोन शॉट लेते हैं तो कितना खूबसूरत आता होगा ना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो भुवनेश्वर वाला जो यानी कि वो चिल्का रूट, यानी चिल्का लेक जो थी, वो लेक बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो ऐसे लगा जैसे समंदर के किनारे वो चल रही है। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, मुझे ना मुंबई टू गोवा जो था मुझे बहुत अच्छा लगा वो रूट। वो एक तो वेदर बहुत अच्छा था, दूसरा ये कि एक वो सीनिक व्यू था बहुत ज्यादा, और पता नहीं क्यों मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आप कहीं और ही किसी और ही दुनिया में चले गए। मुझे वैसे जो वो वास्को डे गामा जो गोवा का स्टेशन है, वहां से जो लांडा आई थिंक लोंडा या लांडा कुछ इस तरह, वैसे पंजाबी में थोड़ा हो जाता है
तो वो भी रूट मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने रामेश्वरम का जो ब्रिज देखा था वो वाकई आप देखकर हैरान होते हैं यार। एक तो वो ब्रिज बहुत ज्यादा लंबा है, ऊपर से सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज है, और उसके दोनों साइडों पे आपको कोई स्पॉट भी नजर नहीं आती। और यहाँ पे जहां तक मैंने पढ़ा था 30 से 40 किलोमीटर पर, और जो है यहाँ पे बस ट्रेन चलती है, इसे बहुत स्लो चलती है। डिफरेंट क्लिप्स देखे हैं उसमें, लेकिन मुझे हैरानगी ये हो रही है, वैसे अब तो सामने मेरे पिक्चर है तो मुझे लग रहा है कि शायद वो बोट्स के थ्रू वहां पर जाते होंगे, क्योंकि वो अभी देखा था ना कोई ब्लॉगर थे जो पटरी के सेंटर में खड़े होकर ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे। नहीं, वो तो वैसे ही खुशकी के पास से गुजर के थोड़ा सा चले गए थे। मेरा नहीं ख्याल कि इस ब्रिज पे जाने की इजाजत होगी, क्योंकि इसका एक हिस्सा जहां तक इस ब्रिज का मुझे पता है वो खुलता है ऊपर की तरफ। आई थिंक वो कश्तियां वगैरह जाने के लिए जो बड़े शिप्स होते हैं ना, ये वो ट्रेन वाला तो इतना हाइट पर नहीं लग रहा, वो रोड वाला ज्यादा हाइट पे है, लेकिन ट्रेन वाला जो है ना, ये मैंने ब्रिज देखा हुआ, एक जगह से खुलता है ऊपर की तरफ उठ जाता है दरमियान से, तो वहां से शिप्स वगैरह गुजरते हैं। ओके, वैसे वाकई में बहुत खूबसूरत था। और इसके अलावा अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे मौजूद? इसके अलावा जो है, अगर हम दार्जिलिंग की बात करें, दार्जिलिंग भी बहुत खूबसूरत टॉय ट्रेन है। फिर उसके बाद अगर हम कालका टू शिमला की बात करें तो वो भी बहुत खूबसूरत है, विंटर में वाकई बहुत खूबसूरत। अच्छा, दार्जिलिंग के बारे में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होगी, मुझे लगा कि हम लोगों ने शायद देखी है, लेकिन मैं ये कहती कि इतनी छोटी तो नहीं है वो। फिर मौजम ने मुझे बाद में हाँ करेक्ट किया, क्योंकि मेरा हाल में मौजम याद हो, आपने ये कहा था कि एक गाना वो बना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो दार्जिलिंग वाली ट्रेन में बना हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज है कहना चाहूंगा, वाकई में इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा है, वहां पे अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी रेलवे लाइंस जो है बिछाई जा रही हैं, उसे भी कनेक्ट किया जा रहा है रेलवे में, तो अभी इतना आपको अच्छे व्यूज देखने को मिले। जब नॉर्थ ईस्ट में बन जाएगी, रेलवे बन के तैयार हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी, फिर वहां पे और कितनी खूबसूरती एक्सप्लोर करने को मिलेगी। और सबसे मजे की चीज क्या है कि आपका जो मुल्क है वो पूरा रेलवे के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आज के वक्त में ना, मॉडर्न टाइम में रेलवे को जो है वो बैकबोन कहा जाता है एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल, मैं कहूंगी, और टूरिज्म को इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और हम लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे, मतलब वास्को द गामा टू लौंडा ही है। हाँ। और इसके बीच में जितने भी व्यू मतलब हम लोगों ने देखे हैं, जितने भी सीनिक व्यूज, हाँ। बहुत ही खूबसूरत थे। और मैं कहूंगी कि आप पता है, जब आप वैसे डिफरेंट लोकेशन देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ना आपका और मन करता है कि आप इन साइट्स को एक्सप्लोर करें। जैसे कि हम लोगों ने दार्जिलिंग देखा, हम लोगों ने कभी विंटर वाली वीडियोस नहीं देखी, लेकिन आज जैसे देखिए, अच्छा जब वो दार्जिलिंग कालका टू शिमला, मेरे पता नहीं क्यों दार्जिलिंग में बोलती जा रही है, असल में आप देखने वाली हैं। हाँ, वाकई में देखूंगी, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी टॉय ट्रेन थी, आई थिंक सिर्फ, लेकिन खूबसूरत है। हाँ, वाकई में। लेकिन मौसम ये कहती कि वैसे जिस तरीके से वो मतलब उसके अंदर से धुआं निकल रहा था, स्टीम इंजन था। अच्छा, तो वो कोयले से चलने वाला। तो वही तो कह रही हूँ कि उससे पोल्यूशन नहीं होती होगी, ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन अभी तक दार्जिलिंग, मेरा ख्याल है सिर्फ दार्जिलिंग ही जो ट्रेन है वही स्टीम इंजन पे चल रही, बाकी सारी जो है वो डीजल या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं। और इंडियन रेलवे की मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगती है, बात नहीं, एक लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, दूध सागर वाली। वहां से जब ट्रेन गुजरती है ना, बहुत खूबसूरत लगता है वो मुझे। आई थिंक काफी सारी मूवीज में भी वो बिल्कुल है, मिली है। वेल गाइस, ओवरऑल बहुत मजा आया, बहुत ही खूबसूरत रूट थे। आई थिंक इससे पहले जो हम लोगों ने घाट देखे थे, हम लोगों ने मुंबई टू पुणे का एक मतलब रोड, मुंबई से दिल्ली हमने देखा था वाया नासिक। मुंबई टू पुणे भी हम लोगों ने देखे थे मौजम। घाट तो वैसे ही देखे थे, वो हाईवे देखा था, रेलवे लाइन नहीं थी देखी। रेलवे लाइन की बात कर रही हूँ मैं, रेलवे लाइन की बात कर रही हूँ। वीडियो देखी थी और वो भी बहुत खूबसूरत था। और जब आप सफर करते हो और आपको इतने खूबसूरत सीन देखने को मिलते हैं, मंजिल देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपका सफर और अच्छा हो जाता है। तो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब हमें इजाजत। आप में से कौन कौन जगहों पे घुमा हुआ है, या फिर आपका फेवरेट रूट कौन सा है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हमें इजाजत, हमारे वीडियो, हमारे चैनल, videos, and keep us in your prayers. Till then, goodbye.